ہفتے کی اس گرم صبح کو لونا ایوانس کے تنگ کمرے میں فون کی گھنٹی 3 بار مسلسل بجتی رہی۔ اس کی آواز نے ایرانی بلی کو بھی پریشان کیا، جو ابھی تک بڑے صبر کے ساتھ فریج کے سامنے بیٹھی تھی۔ پہلی مرتبہ لونا کے بوائے فرینڈ ٹیری نے فون کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لونا 10 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی۔ وہ ابھی تک تو سوتی نہیں رہ سکتی تھی، خاص طور پر جبکہ فون کی گھنٹی بھی بج رہی ہو۔ وہ اتوار کی رات کو لونا سے ملنے کا وقت مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اس اتوار کی رات لونا کی چھٹی تھی۔ جب دیر تک گھنٹی بجتے رہنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا تو ٹیری کو فون بند کرنا پڑا، کیونکہ اسے اپنی کلاس میں جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ 11 بجے کیسینو سے ریٹا ویلس نے فون کیا، مگر جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے قدرے پریشانی کے احساس کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ 1:30 بجے ٹیری نے پھر فون کیا، اور جب جواب نہیں ملا تو سوچا کہ لونا ضرور ساحل سمندر پر گئی ہوگی۔ جھنجھلا کر اس نے فون بند کر دیا۔ 2 بجے کے بعد ریٹا نے بھی دوبارہ فون کیا۔ اس نے جس لڑکی ماریا کو جنرل آفس سے بلایا تھا وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی۔ والیٹ میں جس پھرتی اور حاضر دماغی کی ضرورت تھی، ماریا کو اس کا تجربہ نہیں تھا۔ ریٹا اس خیال سے گھبرا رہی تھی کہ ہفتے کی مصروف ترین رات کو بھی اگر لونا نہیں آئی تو ماریا کیسے کام سنبھالے گی۔ دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا تو ریٹا کچھ زیادہ فکر مند ہو گئی۔ 2 گھنٹے تک اسے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے خود لونا کے گھر جانے اور معلوم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپارٹمنٹ ہاؤس جہاں لونا رہتی تھی مسز میڈوک کی ملکیت تھا۔ وہ ایک بھدے موٹے جسم کی عورت تھی۔ اس نے ریٹا کے خوبصورت متناسب جسم کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ اس کے نزدیک ایسی لڑکیاں گناہ کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتی ہیں۔ لونا تیسری منزل پر رہتی ہے، اس نے بتایا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ مجھے کرنے کے لیے دوسرے بہت سے کام ہیں۔ مجھے کسی کی ٹوہ میں رہنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب کوئی میرے پاس آتا ہے تب ہی اس سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنی تشویش کیوں ہے؟ میں نے اسے 2 مرتبہ فون کیا مگر کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی چاہے تو فون کا جواب دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ ریٹا تیسری منزل پر پہنچی۔ لونا کے کمرے کی کال بیل بجائی۔ اس نے دیکھا کہ دودھ کی ایک بوتل اور ایک اخبار کمرے کے دروازے کے سامنے رکھے ہیں۔ 2-3 بار گھنٹی بجانے کے باوجود جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹی۔ مسز میڈوک اب بھی دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ تو میں کیا کروں؟ جوانی ایک ہی بار آتی ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی ہو۔ میں اپنے کرایہ داروں کے بارے میں یہ تجسس نہیں رکھتی کہ وہ کب آتے ہیں یا کب جاتے ہیں، مسز میڈوک نے جواب دیا۔ ڈیٹیکٹو سیکنڈ گریڈ ٹام لیپسکی کو پیراڈائز پولیس فورس کا سب سے ہوشیار افسر سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھا بھی ہوشیار اور پرجوش۔ شام کے 7 بجے وہ ایک شاندار سوٹ پہنے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا۔ چارلی ٹیز نے اسے حیرت سے دیکھا اور تعریف کی کہ لیپسکی اس وقت بالکل کوئی فلم اسٹار لگ رہا ہے۔ تو کسی فلم اسٹار کی طرح نظر آنا کوئی بری بات ہے؟ لیپسکی نے جواب دیا۔ اگر ہالی ووڈ والے مجھے اس وقت دیکھ لیں تو وہ فلمیں بنانا چھوڑ دیں۔ چارلی نے جلدی سے کہا، آخر اس سنگھار کی ضرورت کیا ہے؟ چیف سے پوچھو، وہ بتانا چاہیں گے تو بتا دیں گے، لیپسکی نے کہا اور چارج روم سے نکل کر ٹیرل کے آفس میں داخل ہوا۔ ٹیرل اور بیگلر دونوں نے کوشش کی کہ اسے دیکھ کر انہیں جو تعجب ہوا ہے وہ اسے اپنے تاثرات سے ظاہر نہ ہونے دیں۔ میں آ گیا ہوں سر، لیپسکی بولا، اور اپنے ساتھ 4 آدمی لے کر ابھی کیسینو روانہ ہوتا ہوں۔ کوئی اور آرڈر تو نہیں ہے؟ اس سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو، ٹیرل نے کہا۔ یہ تمہارا ہے یا کرائے پر لیا ہے؟ بیگلر نے فقرہ چست کیا۔ لیپسکی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہی ہوا تھا کہ ٹیرل نے جلدی سے کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا آنکھیں کھلی رکھنا لیپسکی، ریوالور ساتھ لیے جا رہے ہو؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، میں یہاں آدھی رات تک رہوں گا اور بیگلر ساری رات یہیں ہوگا۔ کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو فوراً رپورٹ کرنا۔ اور سنو، محض اس لیے کہ ایک اچھا سوٹ پہنے ہوئے ہو اپنے آپ کو ان دولت مندوں پر قیاس مت کرنا جو وہاں جوا کھیل رہے ہوں گے، بیگلر نے کہا۔ شراب اور لڑکیوں سے دور رہنا۔ بہت اچھا سارجنٹ، اور اپنے چہرے سے یہ جیمز بانڈ جیسے تاثر کو دور کرو۔ تم ایک پولیس افسر ہو اور تمہیں ایک کام انجام دینا ہے۔ یس سارجنٹ۔ لیپسکی کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ وہ واپس چارج روم میں آیا۔ میں شرط لگاتا ہوں، چارلی بولا، ہیگلر نے تمہیں اس طرح دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا۔ لیپسکی اس قدر غصے میں تھا کہ وہ کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل کر باہر کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا۔ نصف شب کو ہیری لیوس نے میز پر پھیلے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے سگار سلگایا۔
चंद मिनट पहले उसकी सेक्रेटरी घर जा चुकी थी। अब उसे जुए के कमरे की सरगर्मियों का जायजा लेना था। 3 बजे रात तक उसका काम मुसलसल इधर उधर गश्त करना था। वो उठा और लिफ्ट से पहली मंजिल पर उतर गया। अब तक का वक्त मामूल के मुताबिक गुजरा था। खुमारबाजी 10:30 बजे शुरू हो गई थी। उसे हर 15 मिनट बाद रिपोर्ट मिलती रहती थी। जैसा कि तवक्को थी, बड़े बड़े दाव बड़ी बेपरवाही से लगाए जा रहे थे। अब तक कैसीनो फायदे में जा रहा था, मगर ब्राजील से आए हुए दौलतमंद भी जीत सकते थे। उसने खुद जाकर खेल देखने का फैसला किया। वो जुए के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र लेपेस्की पर पड़ी। उसके पास पहुंचा। मुझे खुशी है कि तुम आ गए, उसने कहा। कैरविल का क्या हाल है? कैरविल लेपेस्की की मंगेतर थी और दोनों को तवक्को थी कि वो इस साल के आखिर तक शादी कर लेंगे। लेपेस्की उम्मीद कर रहा था कि लेविस उसे कोई कीमती शादी का तोहफा देगा। वो बिल्कुल ठीक है सर, उसने जवाब दिया, और यहाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? टेरिस पर सर। इन्हें हुक्म है कि वो हर 10 मिनट के बाद गश्त करते रहें। लेविस आगे बढ़ गया। लेपिस्की और उसके साथी बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे थे। जाहिर था इन्हें नहीं मालूम था कि वह अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि जब हमला होगा तो यहाँ जुए के कमरे में नहीं होगा, बल्कि वॉलेट पर होगा, जहाँ हिफाजत के लिए गार्ड्स की नफरी सबसे कम थी। मेज़ों पर जो दौलत फैली हुई थी, वो वॉलेट में मुसलसल बढ़ती हुई दौलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। जो लोग जुआ खेल रहे थे, उनकी किस्मत आज रात सोई हुई मालूम होती थी कि वो बराबर हार रहे थे, और वॉलेट के नोटों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा था। लड़कियां लिफ्ट से आने वाली रकम को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डाल देती थीं, जो नोटों की कीमत के एतबार से खुदकार तरीके पर उन्हें अलग अलग करती थी। इन्हें शुमार करती थी। शुमार करदा रकम के आदाद एक कैलकुलेटर में जमा होते जा रहे थे। फिर मशीन 50-50 नोटों की गड्डियां बनाकर एक दूसरी मशीन में डाल देती थी, जहां दो लड़कियां इन्हें जमा करके एक एक पर अलग अलग कीमत के नोटों की कतार में रखती जाती थीं। जब किसी खास नंबर के नीचे सुर्ख रोशनी जलती थी तो रीटा मेज का नंबर नोट करके मजीद रकम ऊपर भेज देती थी। काम मुसलसल बड़ी तेजी, फुर्ती और एहतियात से होता था। वॉलेट के आखिरी दरवाजे पर दो स्टूलों पर बैठे गार्ड खामोशी से सब कुछ देखते रहते थे और जाहिर है बोर होते थे। उनमें से एक गार्ड का नाम जेफरसन था। वो इस कदर बेजार हो चुका था कि अपना तबादला कराने के बारे में सोच रहा था। दूसरा गार्ड ज्यादा उम्र का था। उसका नाम लोडरी था। वो कुछ मुख्तलिफ मिजाज का था। वो नोटों को देखने के बजाय लड़कियों को देखता था। उनकी हरकत हरकत के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ जाविये, नशेब व फराज उसे अपनी तरफ मुतवज्जो रखते थे। वो खुश था कि उसे दुनिया की सबसे आसान ड्यूटी दी गई है। आहनी दरवाजे के दूसरी जानिब एक लंबी राहदारी थी, जो कि कैसीनो के उस बैरूनी दरवाजे तक जाती थी जो स्टाफ की आमद और रफ्त के लिए मखसूस था। इस दरवाजे के सामने एक पुख्ता प्लेटफॉर्म सा था, जहां हर सुबह कैसीनो को मुख्तलिफ अशिया सप्लाई करने वाले ट्रक खड़े होते थे। इस दरवाजे का गार्ड रेगन था। उसकी उम्र 61 बरस थी। अगले 4 बरस बाद उसे रिटायर हो जाना था। वो तकरीबन 38 साल से कैसीनो की मुलाजमत कर रहा था। उसे अपने काम से मोहब्बत थी और अफसोस करता था कि वो 4 साल बाद रिटायर होकर कैसीनो की मुलाजमत नहीं कर सकेगा। काफी बातूनी था, शायद इसीलिए स्टाफ के दूसरे लोग उसे बोर समझते थे, लेकिन अपनी खिदमत, खुलूस और वफादारी के बावजूद वो मुलाजमीन के इंतखाब में हैरी लेविस की एक गलती था। रेगन की ड्यूटी ये थी कि वो किसी अजनबी या ज़रूरी शनाख्ती कागजात की मौजूदगी के बगैर किसी को भी अंदर ना जाने दे। रेगन को अपनी इस जिम्मेदारी पर फख्र था। मैस्की को ये बात मालूम हो गई थी। वो ये भी जानता था कि रेगन खुद इख्तियारी फैसलों पर अमल करना पसंद करता है। उसे ये बात नापसंद थी कि कोई दूसरा उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो बरसों से गेट की चौकीदारी कर रहा है। कोई बच्चा नहीं है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं कि उसे उसके फ़राइज़ समझाए, और मैस्की रेगन की इसी मिजाजी कमज़ोरी पर इन्हिसार कर रहा था, और ये इन्हिसार मुफीद भी साबित हुआ। जब रेगन ने देखा कि एक छोटा ट्रक आईबीएम का मारूफ निशान अपनी साइडों पर लिए हुए स्टाफ गेट के सामने रुका, तो वो कुछ उलझा जरूर मगर मशकूक नहीं हुआ। उसने सोचा कि कहीं कोई मशीन खराब हो गई, जिसकी इत्तला हेड ऑफिस उसे देना भूल गया। वो ये सोच ही रहा था कि चैंडलर ट्रक से उतरा। उसे मैस्की ने अच्छी तरह पढ़ा दिया था। वो रेगन के केबिन के शीशे लगे दरवाजे के पास आया और रेगन को सलाम करके बोला, वॉलेट में कैलकुलेटर खराब हो गया है। मैं टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम देख रहा था कि कंपनी के दफ्तर से फोन आ गया। लाचार मुझे आना पड़ा। अब जल्दी फारिग कर दो तो बेहतर है। तुम्हें तो ये इत्तला होगी ही।
मैस्की ने बड़ी तवज्जो से रेगन के कैरेक्टर का जायजा लिया था। उसे अंदाजा था कि रेगन कभी यह एतराफ नहीं करेगा कि उसे ऑफिस की तरफ से वॉलेट के कैलकुलेटर खराब होने की इत्तला नहीं दी गई। वो अपनी जात को बड़ा अहम ख्याल करता था, इसलिए मैस्की ने चैंडलर से खास तौर से ये अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा था। लेकिन उसका यह अंदाजा बस एक इम्कान की कामयाबी पर खड़ा था। पल भर के लिए रेगन हिचकिचाया और सोचा कि ऑफिस फोन करके इस बात की तस्दीक कर ले, लेकिन उसे याद आया कि ऑफिस तो बंद हो गया होगा। दिल ही दिल में अफसोस करते हुए कि किसी ने उसे इत्तला करने की जरूरत महसूस नहीं की, उसने चैंडलर के हाथ में पकड़ा हुआ डिलीवरी नोट ले लिया। अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए उसके इंदराजात को गौर से देखा। वो सब ठीक थे। मैस्की को आईबीएम के ऑफिस से एक सादा डिलीवरी फॉर्म हासिल करने में कई दिन लग गए थे, मगर वो उसे बहरहाल मिल गया था। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। रेगन ने सर हिलाकर तस्दीक की। वॉलेट में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसने डिलीवरी नोट पर वाकई की मोहर लगाई, जो किसी भी आने वाले को अंदर दाखिल होने की इजाजत देने के लिए लगाई जाती थी। इस वक्त तक वॉश और हैरी भी ट्रक से उतर आए थे। चैंडलर और वॉश ने मिलकर ट्रक से कार्टन उतारा। पेरी रेगन के पास आ खड़ा हुआ। हेलो दोस्त, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। क्या तुम ही वो आदमी हो जिसका फोटो गुज़िश्ता हफ्ते अखबार में शाया हुआ था? ये इत्तला भी मैस्की ने हासिल करके पेरी को दी थी कि वो इसे इस्तेमाल करे। क्या तुमने देखा था? हाँ, वो मैं ही था। वो मेरा एक पुराना फोटो था, मगर ये कि मैं ज्यादा बदला भी नहीं हूँ। इस केबिन में 38 साल से ड्यूटी दे रहा हूँ। जरा तसव्वुर तो करो, 38 साल से। इसी वजह से मेरा फोटो अखबार में छपा था। अच्छा, पेरी ने हैरत जाहिर की। 38 साल? उफ़ो, खुदा की पनाह। मुझे इस शहर में आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। तुम यहाँ 38 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा मुद्दत से हो। तो तुमने तो बड़ी तब्दीलियां होते देखी होंगी। ये भी मैस्की का बताया हुआ मुकालमा था, और रेगन इस तरफ ऐसे मुतवज्जो हो गया जैसे कोई मछली चारे की तरफ मुतवज्जो होती है। अब तक चैंडलर और वॉश कार्टन उठाए गेट से गुजरकर अंदर जा चुके थे। तब्दीलियां? रेगन ने पैरी का पेश करदा सिगरेट लेते हुए जवाब दिया। कोई ऐसी वैसी? मुझे अच्छी तरह याद है। बाहर ट्रक में मैस्की ड्राइविंग व्हील संभाले बैठा था। ट्रक के आने से 25 मिनट कबल मिश अपनी किराए पर ली हुई कार में कैसीनो पहुंचा। औजारों का थैला कंधे पर डाला और कैसीनो के रोशन दरवाजे की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे देखा। इससे बेशतर कि वो कुछ कहता, मिश बोल उठा। हमें मिस्टर लेविस ने फोन किया था कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो गया है, मगर मुझे इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। गार्ड ने जवाब दिया। वो भी कमोबेश इतनी ही मुद्दत से मुलाजिम था जितनी मुद्दत से रेगन। इस अरसे में उसने मिलने वाली बख्शिश से खासी रकम जमा कर ली थी। मुसलसल दरवाजे पर खड़े रहकर एक लगी बंधी ड्यूटी देते हुए वो कुछ ज्यादा होशियार नहीं रह गया था। देखो मिस्टर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मिश कदर तेजी से बोला। कहीं कोई सर्किट खराब हो गया है और बिजली फेल हो जाए तो वो मेरा दर्द सर नहीं। मुझे तो एक फोन मिला था, और जिसने भी फोन किया था बड़ी परेशानी के अंदाज में मुझे जल्द से जल्द आने की ताकीद की थी। बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि फ्यूज बॉक्स कहाँ है। गार्ड कुछ हिचकिचाया, मगर फौरन ही उसे एहसास हुआ कि अगर बिजली फेल हो गई तो क्या होगा। जरूर जरूर, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखा दूं कि फ्यूज बॉक्स कहाँ है। गार्ड उसे एक तंग सी गली में ले गया जिसके दोनों तरफ नारंगी के दरख्त लगे थे। आखिर में एक मुकफ्फल आहनी दरवाजा था। गार्ड ने चाबी निकालकर दरवाजे का कुफल खोल दिया। फ्यूज बॉक्स यहाँ है, उसने बताया। खराबी क्या हो गई है? मुझे क्या मालूम, मिश ने औजारों का थैला नीचे रखते हुए जवाब दिया। अब देखूंगा तो मालूम होगा। चाहो तो तुम भी खड़े रहकर देख सकते हो। गार्ड ने तजब्जब का इजहार किया। उसे कुछ मुबहम सा याद आया कि उसूलन जरूरी तहरीरी इजाजत के बगैर किसी को भी कंट्रोल रूम में जाने की इजाजत नहीं है, और किसी को भी वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मगर ये एक मुबहम सी याद ही थी। उसे उन लोगों का ख्याल आया जो मुसलसल कैसीनो में आ रहे होंगे। यहाँ मौजूद रहकर वो अपनी $1 फी गाहक की टिप से महरूम होता रहेगा। उसने मिश की यूनिफॉर्म और औजारों के थैले को गौर से देखा, जिनमें से हर एक पर पैराडाइज सिटी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन तहरीर था। आखिर उसे किस बात की फिक्र है? उसने सोचा। इस वक्त तो उसे दरवाजे पर होना चाहिए। तुम इसे ठीक कर दो, उसने कहा। मैं अभी 10 मिनट में वापस आता हूँ। जल्दी की जरूरत नहीं है, मिश ने सरसरी लहजे में कहा। मेरा अंदाजा है कि मुझे यहाँ कम से कम आधा घंटा जरूर लगेगा। अच्छी बात है, मगर मेरे आने तक जाना नहीं, गार्ड ने वापस जाते हुए कहा। मिश मुस्कुराया और घूमकर फ्यूज बॉक्स देखने लगा।
उसे जल्द ही वो फ्यूज मिल गया जो कैलकुलेटर को कंट्रोल करता था, लेकिन अभी उसे अपना काम करने में चंद मिनट बाकी थे। वो सिगरेट सुलगाकर औजारों का थैला खोलने लगा। लोडरी को महसूस हुआ कि पसीने की एक बूंद चेहरे से बहकर हाथ पर गिरी। वो कुछ ऊब गया था। एकदम होशियार होकर चौंक गया। उसे वॉलेट में गर्मी का एहसास हो रहा था। यहाँ गर्मी बढ़ती नहीं जा रही है? उसने दूसरे गार्ड जेफरसन के कंधे को टहोका देते हुए कहा, जो कि एक नॉवेल पढ़ते हुए एक ऐसी तस्वीर देखने में मुनहविक था जिसमें एक लड़की की नीम उड़िया लाश को खून में डूबे दिखाया गया था। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, जेफरसन ने जवाब दिया। लोडरी ने पसीना पोंछते हुए एयर कंडीशनर की तरफ देखा। अपने स्टूल से उठकर उसके पास गया। जाली को हाथ लगाकर देखा। एयर कंडीशनर से गर्म हवा निकल रही थी। ये तो खराब हो गया है, वो बोला। चारों लड़कियां बड़ी तेजी से काम कर रही थी। सूरत हाल बदल गई थी और अब ऊपर कुमारबाजी के हॉल में ब्राजील के दौलतमंद जीत रहे थे। रीटा जलने वाली सुर्ख रोशनियों का जवाब दे रही थी। उसने अपने लिबास को जिस्म से चिपकते महसूस किया, मगर वो रुक नहीं सकती थी। उसने इशारे से लोडरी को इस बारे में कुछ करने के लिए कहा। लोडरी ने बेचारगी से जेफरसन की तरफ देखा, जो नावल पढ़ने में महव था। बड़ा सनसनीखेज मंजर चल रहा था। एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही थी। वो सख्त मुजाहिमत कर रही थी। जेफरसन भला नॉवेल छोड़कर किसी और तरफ मुतवज्जो हो सकता था। कभी कभी तुम भी कुछ कर लिया करो, वो बोला और फिर नॉवेल की तरफ मुतवज्जो हो गया। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इसी वक्त कैलकुलेटर ने काम करना बंद कर दिया। लानत हो, रीडर ने नागवारी से कहा। अब ये कैलकुलेटर भी खराब हो गया। चारों लड़कियां काम करते करते रुक गईं। इन्हें अचानक एहसास हुआ कि वॉलेट में गर्मी बढ़ती जा रही है। दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी गई। जेफरसन एक गहरी सांस लेकर उठा, नॉवेल बंद करके अपनी हिप पॉकेट में रखा और दरवाजे की जालीदार खिड़की से झांका। उसने एक आदमी को आईबीएम की यूनिफॉर्म पहने और उसी का बैज लगाए खड़े देखा। क्या बात है? उसने पूछा। कैलकुलेटर लगाने आए हैं, तुम्हारा वाला खराब हो गया है। जेफरसन ने उसे घूर कर देखा। उसके होशियार जहन में फौरन शुबा पैदा हुआ। तुम्हें इल्हाम हुआ था क्या? उसने कहा। कैलकुलेटर तो अभी अभी खराब हुआ है। हमें मिस्टर लेविस ने फोन किया था, चैंडलर ने जवाब दिया और डिलीवरी नोट दिखाया जिस पर रेगन ने मोहर लगाई थी। रीटर ने आगे बढ़कर डिलीवरी नोट देखा। उस पर रेगन की मोहर देखी। उसके इत्मीनान के लिए इतना ही काफी था। इन्हें अंदर आने दो, उसने कहा, ताकि ये लोग कैलकुलेटर ठीक कर सकें या दूसरा लगा सकें। ये कहकर वो अपनी मेज पर वापस चली गई। ओके, जेफरसन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ।